Yes, beta. Tomorrow, Monday is English exam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. So you have Sunday, no? Prepare. So we did micromolecules in the morning. Okay. Now we'll start with macromolecules, the second part of the chapter. That is all. When we did micromolecules, we said the molecular weight should be less than. 1000 Dalton. Yes, Mitchell. So here, just take it the opposite. The molecular weight should be more than 1000 Daltons. So this we have. There are three main categories: proteins, polysaccharides, and nucleic acids. How many categories we had there in micromolecules? We had 4 categories. Do you remember the names? Amino acids. Which others? Lipids, Yes. Nitrogenous bases and Sugar. sugars. Very good. sugar, Very good. So we had 4 categories of micromolecules. We had amino acids, we had sugars, we had nitrogenous bases, and we had, what was the other one? Last one? Fourth? Lipids. Lipids. Yes, I had missed out. We had 3 categories of amino acids: acidic amino acid, basic amino acids, and neutral amino acids. Similarly, we had 3 categories of lipids. Name them. simple lipid, Simple compound lipid, compound derived lipid, lipid. lipids, derived lipids. Simple lipid, compound lipid, and derived lipids. Absolutely perfect. Then we had normal sugars, where the ratio of carbon, hydrogen, and oxygen was 1 ratio. 2 ratio 2 1. ratio 1. Yes, that is all we need to remember. And the last one we did were nitrogen bases, which were put into 2 categories: purines and. Pyrimidines. Yes. Pyrimidines, For purines, we had the formula. Ag. Ag, That is adenine and guanine. And for pyrimidines, we had 3. What was the formula? CTU. Very good. Cytosine, thymine, uracil. A combination of a nitrogenous base and a sugar is called. nucleoside, Nucleoside. Exactly. And sugar, we have a nitrogenous base and we have a phosphate group also. Then we called it as. Nucleotide. nucleotide, That is all about micromolecules. Now I'm moving on to macromolecules. We said the micromolecules we said are less than 1000 Daltons and they're acid soluble. These are greater than 1000 Daltons. Okay. We have 3 main categories: proteins, polysaccharides, and nucleic acids. Name the 3 categories of macromolecules. Proteins, protein, polysaccharides, and nucleic polysaccharides, and acid. nucleic acid. So if I ask you 3 main differences, you will say, ma'am, biomolecules ka weight is less than 1000 Dalton, but macromolecules is more than 1000 Dalton. Micromolecules are acid soluble, but macromolecules are insoluble. And there we had those 4 subdivisions, and here you have these 3 subdivisions. So you can take up these 3 differences between macro and micromolecules. Okay, now come to this. There is a little bit confusion about lipids. Okay, lipid we counted where? In micro or macro? Micro. Micro. Yes, we have already counted lipids in micro. Now, why are we taking up lipids over here? Let us see. Lipid is not a macromolecule because we already have done, we have put it in micromolecule. Its molecular weight does not exceed 800 Daltons. But एक प्रॉब्लम आ जाता है बेटा, अगर हम वेट के हिसाब से देखें तो इसका वेट 800 डाल्टन से कम है, इसका मतलब हमें इसे माइक्रो में डालना चाहिए. बट दिस इज एसिड इनसॉल्युबल. एसिड इनसॉल्युबल किसका प्रॉपर्टी होता है, माइक्रो और मैक्रो? Macro. मैक्रो. सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लिपिड्स में आ जाता है, दो वी हैव ऑलरेडी पुट देम इन माइक्रो क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन्स. बट इफ यू कंसिडर इट्स नेचर देन इट इज एसिड इनसॉल्युबल. रीजन क्या है ये एसिड में इनसॉल्युबल क्यों हो जाता है? Many lipids are arranged into structures like cell membranes. Okay, if you see lipids, they arrange themselves ऐसे करके and membrane बना लेते हैं. देखो यहाँ पे 2 layers बन रही है, so we call it as a lipid bilayer. Basically lipid अकेला नहीं है, लिपिड एक साथ लाइन में अरेंज होकर के क्या बना देते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स. सो जब आप टिश्यू को ग्राइंड करते हो तो ये सेल मेम्ब्रेन्स ब्रेक तो हो जाती हैं, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल्स बनाती है.
तो दैट इज द रीजन कि ये एसिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज लिपिड्स जब भी अरेंज्ड होते हैं दे आर ऑलवेज अरेंज्ड टुगेदर इन अ लाइन लाइक स्ट्रक्चर एंड दे मेक सेल मेम्ब्रेन्स। ऐसे करके देखो, ये येलो येलो वाले जो है दे अरेंज देमसेल्फ इन सेल मेम्ब्रेन्स। तो जब आप ग्राइंड करते हो और आपको सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मिलता है, तो ये मेम्ब्रेन जब ब्रेक करता है तो ये वेसिकल्स बनाता है विच इज इनसॉल्युबल। सो देयर इज वन कॉम्प्लेक्सिटी इन लिपिड्स। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वो किस में जाते हैं? Micromolecule. Micromolecules. But if we talk about the acid insoluble part, तो हमें उसमें किस में रखना पड़ेगा? Macromolecule. Macromolecule. But you see over here हमने इनको मैक्रो में नहीं रखा है, हमने ऑलरेडी इनको वेट के अकॉर्डिंग ही लेकर के चलना है. ओके, so we have not put it in, lipids are not included in this category, we'll take it in micro only. This is about bio macromolecules. एवरेज कंपोजिशन सभी का बेटा, वाटर सबसे ज्यादा रहता है 70 to 90%, प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा है एंड आयंस आर ओनली 1%. चलिए सबसे पहला वाला कैटेगरी पढ़ते हैं, प्रोटीन्स. द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रोटीन. हमने ये पढ़ा था ना अमीनो एसिड क्या होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स में. वी सेड इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अमीनो एसिड. किसके सब्स्टिट्यूशन से बना था? विच हाइड्रोकार्बन? मीथेन. मीथेन. वेरी गुड. तो मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से एक अमीनो एसिड बन गया. अब पॉलीमर बना लो अमीनो एसिड्स का, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर व्हाट? दे हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. हेटेरोपॉलीमर्स इसलिए बोलते हैं बट इट्स बिकॉज इट इज नॉट एसेंशियल कि जो भी अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं वो सेम टाइप के हों. अगर सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड सपोजिंग लाइसिन 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 ही कंबाइन हो रहा होता तो आई वुड हैव कॉल्ड इट एज होमोपॉलीमर. But here we can have different kinds of amino acids combining. So polymers of amino acids are what we call as proteins. They are chains of amino acids linked with peptide bonds. ये एक अमीनो एसिड है, ये एक और अमीनो एसिड है. हमें पता है ये अमीनो एसिड है क्योंकि यहाँ पे हमारा अमीनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है. So this is one amino acid, this is another amino acid. ये दोनों, ये पिंक वाला देखिए, ये एक अमीनो एसिड, जो जो पिंक है ये सारे अमीनो एसिड्स हैं. They will be bound together. इनको bind कर देगा by a bond. What is the name of the bond? Peptide bond. Peptide bond. Peptide bond. So if you see ये polymer बन गया. These are all amino acids. एक chain है और ये जो बीच में bond है, these are peptide bonds. So when lot of amino acids are connected with peptide bonds, तो क्या बन जाता है? Polypeptides. Polypeptides. और you can say proteins बन जाते हैं. Simple. Okay? अब यहाँ देखो बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है? COOH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड. ठीक है, इस अमीनो एसिड का तो COOH ये वाला लेते हैं. चलो इस वाले का आप COOH ले लो. अब देखो बेटा, जब ये कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, तो कौन से ग्रुप्स पास में आते हैं? इसका तो एसिडिक ग्रुप आएगा और इसका अमीनो ग्रुप आएगा. दे बाइंड विद ईच अदर. व्हेन दिस विल हैपन, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड. ओके, क्योंकि ये डबल, देखो ये वाला देखो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आएगा. पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है. दैट इज व्हाई जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा डिहाइड्रेशन जरूर होगा. अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑलवेज रिलीज्ड. सो प्रोटीन्स क्या है? अमीनो एसिड्स को हमने बाइंड कर दिया. बीच में कौन से बॉन्ड्स है बेटा, जल्दी बताइए. Peptide bond. Peptide bond. वेरी गुड. पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं. सो ये वन अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड. आप सोचो हमने इनको बाइंड करना है, ये पास पास आएंगे, तो इस वाले का तो एसिडिक ग्रुप है और इसका अमीनो ग्रुप. जब ये बाइंड करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड का, तो क्या चीज रिलीज होगी? कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है हमेशा? Water. Water. One molecule That of means water. पेप्टाइड बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन. पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनेगा तो डिहाइड्रेशन जरूर होगा. बस दैट इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स. फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स यू कैन लर्न बेटा. ग्रोथ है, टिश्यू रिपेयर है, ट्रांसपोर्ट है, एंटीबॉडीज देता है, रिसेप्टर्स है, हार्मोन्स है. नाउ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन. व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? Collagen. Collagen. दिस इज इन एनिमल्स, हाँ, प्लांट्स में नहीं. और अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब मिला के, देन इट इज रुबिस्को. व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? Rubisco. Yes.
एनिमल्स में तो कोलेजन है एंड बायोस्फीयर में रुबिस्को है। देखो प्रोटीन्स वी हैव 4 स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है, बहुत ही इजी है बेटा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग प्रोटीन्स का। ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पिंक वाले आपको पता है ये अमीनो एसिड्स हैं, और ये जो ब्लू वाले हैं ये कौन से बॉन्ड्स हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। यस, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको ध्यान से देखो, अगर इसका हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड ये है। हमारी लाइंस बना दी हमने, काउंट करिए कितने अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे, काउंट करके बताइए बेटा। 4। यस, सिंपल, दे 4। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तो आपका अमीनो ग्रुप वाला पार्ट आएगा अमीनो एसिड का एक तरफ, और दूसरे एंड पे ये वाला आ रहा है COO वाला। ठीक है, इसने हाइड्रोजन लूज किया होगा तो ये NH3 बनता है, ये नो अबाउट दिस। तो सिंपल कॉम्बिनेशन है, ये एक चेन बन रही है अमीनो एसिड्स की। एक तरफ आपका ये एन टर्मिनस है, एन टर्मिनस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अमीनो साइड है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक साइड है, इसलिए इस एंड को हम क्या बोल देते हैं, C टर्मिनस। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना बच्चा, सो विल कॉल दिस एज व्हाट? C terminus. C Okay. terminal. Now this is a simple protein, सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ये पिंक वाले सारे क्या हैं हमारे अमीनो एसिड्स, कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond. तो लेफ्ट साइड पे हमेशा जो स्टार्टिंग होगी फर्स्ट अमीनो एसिड की, वो लेफ्ट साइड पे अमीनो ग्रुप रहेगा, एन वाला ग्रुप। इसीलिए हम इस साइड को क्या बोलते हैं, कौन सा टर्मिनस है ये? N terminal. N terminus. एंड जब हम फिनिश करेंगे तो बेटा ये देखोगे तो ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, पहला अमीनो एसिड है तो यहाँ एन होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। लास्ट वाला आपका फोर्थ है, तो इधर लास्ट में जो खत्म होगा वो कार्बोक्सिलिक पे खत्म होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, C टर्मिनस। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। चेन तो है ये वाली जो आपकी नॉर्मल चेन थी पहले वैसे ही है, लेकिन ये ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगी, कुछ कुछ DNA जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर ले लेगी। अगर ऐसे करके टर्न करेगी तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ओके, व्हाट इज इट? बट ये याद रखना, ये हमेशा राइट हैंड हेलिक्स लेगा, हमेशा किधर को टर्न करेगा, राइट को। देखिए ये एक टर्न है, राइट को मुड़ रहा है, ये वाला भी किधर को जा रहा है, राइट को, ये भी राइट को जाएगा। सो ये अल्फा हेलिक्स बोलते हैं इसको, इस तरह की चेन, दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज हेलिक्स। फाइन। एंड कई बार ये देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाती है, आपस में सामने सामने आ, ये आधी है, इसको आधा आप समझ लीजिए, हाफ कर दीजिए, हाफ इधर आ गया, ऐसे करके ऐसे एक दूसरे के सामने ऑलमोस्ट पैरेलल अरेंज हो गए। सो दिस इज नोन एज बीटा, बीटा प्लेटेड शीट। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, आपका ये जो लीनियर चीज थी ये स्ट्रेट ऐसा लीनियर नहीं रहा, आइदर इट हैज मेड अ हेलिक्स और इट हैज मेड प्लीट्स। प्लीट्स क्या होती है, कोई भी चीज जो पैरेलल होती है एक दूसरे की, जैसे ये 1 2 3, इनको प्लीट्स बोलते हैं। तो ये प्लीटेड स्ट्रक्चर हो गया। सो दिस इज अ प्लीटेड स्ट्रक्चर एंड दिस इज हेलिक्स स्ट्रक्चर। सच काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसमें कि आपकी ये जो चेन है वो हेलिक्स बना लेती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज? सेकेंडरी Alpha स्ट्रक्चर। helix. यस, अल्फा Secondary. हेलिकल चेन और अल्फा हेलिकल, वेरी गुड। या फिर ये प्लीटेड वाला, लेकिन ये दोनों मिला के हमारे बन गए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये केराटिन ऑफ योर हेयर, ठीक है, और ये देखिए पैरेलल शीट्स बन रही है, तो बीटा प्लीटेड चेन बन गया। अब आ गए हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड लाइक अ वुलन बॉल, और फोल्ड हो गया, ज्यादा फोल्ड हो गई, ये कुछ कुछ सर्कुलर, देखिए कितना फोल्ड हो रहा है, कितने छोटे छोटे टर्न्स दिख रहे हैं, फर्दर फोल्ड हो गया एंड ऑलमोस्ट 3D में देखेंगे तो एक बॉल की तरह दिखेगा, सर्कुलर बॉल की तरह। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर इज दिस कॉल्ड? Tertiary structure. टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो एक और बचा है, वो भी दिखा देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक चेन नहीं है बेटा, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो यहाँ पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है,
ये देखो यहाँ पे दे फॉर्म अ टर्शरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 सब यूनिट्स है, आपको दिख रहा होगा 2 अल्फा है, 2 क्या है बीटा। बीटा। कितनी दिख रही है? 2 अल्फा 2 बीटा। मतलब कि मोर देन 1 चेन है और वो आपस में पूरा ऐसे इंटरकॉइल हो जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बच्चा? दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Quaternary structure. ये देखो 1 2 3 डिफरेंट कलर्स दे आर शोइंग यू। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग हो रहा है, अलग अलग कलर्स है, ग्रे पिंक येलो। सो मोर देन 1 चेन्स है। लेट मी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा जब अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत बढ़िया। पेप्टाइड बॉन्ड जब भी होता है तो किस चीज का लॉस होता है? Water. One molecule of water. वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन। गुड। Collagen. And most important protein in the biosphere is रूबिस्को। rubisco. Rubisco. हाँ, now we had 4 levels. चलिए पहचानने की कोशिश करते हैं। सिंपल, ये सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड है, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। लेफ्ट वाली साइड पे कौन सा ग्रुप होगा? एन टर्मिनल। N terminus. वेरी गुड। एन मतलब अमीनो ग्रुप है आपका, सो एन टर्मिनल रहा होगा। राइट वाले साइड पे कौन सा है? C terminus. Carboxylic group. वेरी गुड। अगर आप ये देखो बच्चा, तो कहीं भी कॉइल वॉइल कुछ नहीं हो रहा है। कॉइलिंग हो रही है? कुछ नहीं है आपस में, ये सिंपल चेन है आपकी। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक ही चेन है, अनकॉइल्ड है, सिंगल चेन अनकॉइल्ड चेन। एक तरफ एन टर्मिनस, एक तरफ सी टर्मिनस। अब आते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो वो ऐसे हेलिक्स ले लेगा राइट साइड पे, या फिर प्लीट्स जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। अब अगर हेलिक्स ले लेता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिकल। वेरी गुड, अल्फा हेलिकल। एंड अगर ऐसा प्लीटेड स्ट्रक्चर बना देता है तो? बीटा प्लीटेड। Beta pleated. यस, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली नॉर्मल चेन नहीं थी, ये ऐसे हेलिक्स में आ गई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा कॉइल हो गई चेन्स। सेकेंडरी में जितना कॉइलिंग था बेटा, उससे और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी। देन व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज दैट? Tertiary structure. देखो फर्दर फोल्डिंग्स आ जा रहे हैं इसमें। एंड इफ वी हैव मोर, लेकिन चेन एक ही है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेम चेन है, फोल्डिंग ज्यादा हो गई है, सो ये टर्शरी बन गया। इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। यहाँ पे क्या होता है? मोर देन One. yes, we have more than one chain. We don't have one chain, we have more than one chain. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? Quaternary structure. The best example is we just did hemoglobin. देखिए बेटा जल्दी पहचानो। अच्छा, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। जब बना होगा तो किसका लॉस हुआ होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। One molecule of water. डिहाइड्रेशन हुआ होगा, इधर अमीनो ग्रुप रहा होगा, सो दिस एंड विल बी नोन एज N terminus. वेरी गुड। इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहा होगा, सो दिस विल बी नोन एज C terminus. सी टर्मिनल। सेम चेन है, बट ये हेलिक्स में आ गया। ये हेलिक्स देखो, राइट साइड को टर्न लिखे हेलिकल। सो इसको हम क्या बोल देते थे? अल्फा हेलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये पैरेलल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो आते हैं, Beta plated sheet. so if you see these two structures, they are not linear structure like a primary one, so these structures are known as what? Secondary structure. Yes, secondary structure. Further folding has taken place, then it becomes which structure? Tertiary Tertiary structure. structure. Here they have shown you 2 different colors. That means we have more than one chain. Pink, orange, most probably they are trying to tell you. देखो यहाँ पे इसी तरह का folding यहाँ पे भी आ जा रहा है, but quaternary में we have more than one chain. So we are done with the first category of macromolecules. That is, which is the first category of macromolecule? When I started macro, we said we had 3 categories. What is it? Proteins. Proteins. Now we'll move on to the second category, that is polysaccharides.
ओके, आई थिंक इन द मॉर्निंग थोड़ा बहुत करा था, शायद आप लोग जल्दी रिलेट कर पाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर्स ऑफ शुगर। बेटा अगर आप ध्यान दोगे ना तो आप ये देखोगे ये सब पॉलीमर्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑल पॉलीमर्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड सैकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? Glucose, sugar. Sugars, yes, they are polymers of sugars. ओके, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है तो हम इसको स्टार्च बोल देते हैं, ये है हमारा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो सेलुलोज बन गया। पॉलीमर ऑफ ग्लूको, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का एक और फॉर्म आ जाता है, शेप अलग है, ये ग्लाइकोजन है, ये फ्रक्टोज का हो गया तो क्या बन गया? इंसुलिन बन गया। ओके, सिंपली पॉलीसैकेराइड्स इतना याद रखिए, दे आर पॉलीमर्स ऑफ शुगर। व्हाट आर दे आर पॉलीमर्स ऑफ sugar. They are complex polysaccharides formed of amino sugars. Okay, basically which sugars? Amino sugars. What do you mean by amino sugar? Any idea? Glucosamine, N-acetyl galactosamine, etc. They are known as amino sugars. What is the difference between a sugar and an amino sugar? ये मैं आपको बता देती हूँ, डोंट वरी, आप ये वाला स्लाइड एकदम फटाफट देखिए पहले। I'll tell you the difference between amino sugar and sugar. So they are polymers, polysaccharides are polymers of what? Amino sugar. amino sugar, यस बेटा, वेरी गुड। तो अमीनो शुगर क्या हो गया? कोई भी शुगर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है अमीन ग्रुप के साथ। एनी शुगर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ जाता है बेटा? अमीन ग्रुप। विच ग्रुप कम्स? amine group, yes, that is what we call as an amino sugar. सिंपल, OH की जगह आपका NH2 आ गया, इतना याद रखिए तो वो अमीनो शुगर बन जाता है। We have almost 60 amino sugars, इतना डिटेल नहीं करना है, just remember that they're polymers of sugars. आप इनमें से कोई भी एग्जांपल याद कर सकते हो। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेलुलोज इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इतना सफिशिएंट है। They are complex polysaccharides formed of amino sugars. We have one more, chitin. This is the homopolymer of N-acetyl glucosamine, इसी वाला, ये अमीनो शुगर है, ये वाला। इसी अमीनो शुगर का पॉलीमर है chitin. Have you heard about chitin? You must have read about it in exoskeleton of arthropods and cell walls of Yes, ma'am. fungus. Yes, ma'am. No, beta. So actually chitin is also a polymer, homopolymer of which amino sugar? ये रहा नाम इसका, glucosamine. What is its name? Glucosamine. glucosamine, So not much in polysaccharides, just that they're polymers of sugars. You can remember two simple names of polysaccharides, starch and cellulose. Both of them are polymers of glucose. Then amino sugars हैं, complex polysaccharides are formed of what? Amino sugars. And we did one very good example, that is chitin. This is a polymer of which amino sugar? Glucosamine. Glucosamine. Now this is something to do. पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत इजी है। देखो पिछले वाले पार्ट में इसमें कुछ नहीं है आपको याद करने को, आप यहाँ जाओ डायरेक्ट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है? ये दो मोनोसैकेराइड्स हैं बेटा, दिस इज वन मोनोसैकेराइड, दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड, दे सब यूनिट्स, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, सी इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स ये लिंक हो रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखिए ये दोनों लिंक हो जा रहे हैं यहाँ पे, एंड डिहाइड्रेशन होगा, अगेन द सेम विच आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग। क्या होगा बेटा यहाँ पे? डिहाइड्रेशन होगा। कैसे होगा? लेट अस सी दिस। ये OH दिख रहा है? yes ma'am, Yes, ma'am. यस। अब इसमें से H हटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका? O. O। O, तो यहाँ इस इधर से तो आप देखिए ये H, ये यहाँ से तो आपका O आया, ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाले से चलो O लिया इन्होंने, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट ओनली, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट वाले मोनोसैकेराइड से हमें O मिला, क्या मिला बेटा? ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, एंड दूसरे O. वाले से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है आपका? OH. OH, वाटर लॉस कैसे होगा बताओ? कैसे बनेगा बताओ, जल्दी बताओ।
फिगर देख के बताओ। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये वाटर जो बन रहा है इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे होंगे? फिगर देखो, इफ यू सी द फिगर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, who will tell me? हम्म, देखो बच्चा, देखो 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 जल्दी, बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? कार्बन ऑफ वन, ठीक है, यहाँ कार्बन तो रहा ही होगा, है कि नहीं बच्चे? यहाँ पे व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ये है क्या? ये सारे पॉइंट्स पे क्या रहा होगा? ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, मैम कार्बन। कार्बन। ये सीधी सी हाँ। बात है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान से देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड combines with the hydrogen of the another monosaccharide, तो क्या रिलीज हो गया? OH ये था, एक H यहाँ से आ गया, तो क्या रिलीज हो गया? वाटर। 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 देखो मैं कंबाइन करके दिखाती हूँ, इसका OH ले लेना बेटा, ये वाला OH, ठीक है, ये रेड वाला, रेड वाले को देखिए बस, ये रेड वाले OH को थोड़ा और आगे बढ़ाइए और इस वाले H को साथ में ले लीजिए, तो क्या बन गया आपका? H2O। 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 सो ये H2O का लॉस हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे? O। O। So this is the O that you see, इन दोनों के बीच में लिंक कर देगा ये, this kind of a linkage is called glycosidic linkage. Understand again what is a glycosidic linkage? ठीक है, the hydroxyl group, OH group है ये, hydroxyl group of one monosaccharide combines with the hydrogen of the other monosaccharide and there is a loss of what? Water. Exactly. And then this, what is left with us is this oxygen. This is going to bind these mono 2 saccharide units, and this kind of a linkage is known as what linkage? Glycosidic। Glycosidic linkage. Glycosidic linkage. See if I have sugars here somewhere. नहीं है, चलिए इसी में दोबारा से आपसे पूछ लेते हैं. We are going to do a glycosidic linkage. The first characteristic feature of this is the dehydration होगा बेटा. Now you complete my sentence. Hydroxyl group of one monosaccharide unit combines with what? Hydrogen. Yes, combines with the hydrogen of the other unit and one molecule of water is released. This O is left, this will bind both of these and such kind of a linkage is known as, Glycosidic linkage. yes, it is called as the glycosidic linkage. Dehydration जरूर होता है. So why are we studying glycosidic linkage? Polysaccharides में कौन सा linkage होता है? Glycosidic bond is- linkage. Glycosidic bond is formed. This is glycogen, इतना नहीं जाना है. Polysaccharides, ये देखो स्टार्च, हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका स्टार्च का. ओके, सेलुलोज, देखो जो स्टार्च है बेटा, स्टार्च एंड सेलुलोज में क्या डिफरेंस है? लेट मी गो बैक एंड शो यू. व्हेन आई सेड, आप दो एग्जांपल याद कर लेना ये वाले. तो आई सेड बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स ऑफ स्टार्च, सॉरी ग्लूकोज. स्टार्च इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेलुलोज इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, ये हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर है. दोनों के दोनों किसके पॉलीमर्स हैं? ग्लूकोज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब स्टार्च का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है हेलिकल टाइप का, तो ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है. क्या होल्ड कर सकता है? ये आयोडीन. बट इसमें ऐसे कोई हेलिक्स नहीं है कि जहाँ पे हम आयोडीन को स्टोर कर लें या रोक लें. तो सेलुलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन. सो व्हेन वी डू अ टेस्ट वी वांट टू चेक
कि ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है, इज इट स्टार्च और इज इट सेलुलोज. सो वी सिंपली कैन डू द टेस्ट आयोडीन वाला. व्हेन यू गेट व्हाट कलर? Blue color. यस. Blue color. अच्छा, whenever you test for iodine आप यही बोलते हो ना, we test starch with iodine, it gives us blue black color. Yes, हम लोग ma'am. सेलुलोज के लिए तो कभी आयोडीन टेस्ट नहीं करते हैं ना, स्टार्च के लिए करते हैं. रीजन क्या है? दोनों ग्लूकोज के Because ही तो पॉलीमर है. रीजन यही है बेटा. ग्लूकोज किसको होल्ड कर, स्टार्च किसको होल्ड कर सकता है? iodine. Iodine. आयोडीन. एंड सेलुलोज कैन नॉट होल्ड इट. रीजन क्या है? स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है? हेलिकल. व्हाट इज द Helical. स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च? हेलिकल. Helical. अब ये हमारा, Helical. वेरी गुड, ये जो चावल का पानी आपको दिखाई दे रहा है ये स्टार्च है. ओके, इसमें हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या ब्लू ब्लैक कलर आएगा Yes, ma'am. स्टार्च के साथ? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. अच्छा, एंड इसमें भी पोटैटो आल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टार्च. इसमें भी आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट इफ यू टेस्ट फॉर सेलुलोज यू विल नॉट गेट दिस कलर. रीजन, ये शेप है बेटा. द डिफरेंस, बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, बस इनका शेप अलग है. ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है. ये होल्ड कर सकता है, ये होल्ड नहीं कर सकता है. सो वी आर डन विद द सेकंड कैटेगरी आल्सो. स्टार्च में कुछ मतलब सेकंड कैटेगरी वाज पॉलीसैकेराइड्स. प्रोटीन्स के बाद सेकंड कैटेगरी पॉलीसैकेराइड्स था. हमने ये पढ़ लिया था कि पॉलीसैकेराइड्स कुछ नहीं होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? Sugar. Sugar. जब कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं तो वो अमीनो शुगर से बनते हैं. नॉर्मल पॉलीसैकेराइड होगा तो वो शुगर से बनेगा. नॉर्मल पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये नॉर्मल पॉलीसैकेराइड्स हैं, मतलब ये नॉर्मल शुगर से बनेंगे. जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कौन सी शुगर से बनते हैं? Amino sugar. Amino Amino. sugar. सो दैट मीन्स काइटिन हमारा कौन से पॉलीसैकेराइड से बन रहा है? सिंपल पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड? Complex. Complex. Yes. In polysaccharides, many saccharide units are combined together by which bond? Glycosidic. Glycosidic bond. In a glycosidic bond, the hydroxyl group of one unit combines with Hydrogen of other unit. very good, and a molecule of water is released, and दोनों के बीच में जो bond बनता है, that is known as which bond? Glycosidic bond. Glycosidic bond. Starch and cellulose both are polymers of glucose. इनके structure में difference है. That is why starch can hold iodine, but cellulose Cannot. cannot. Let's move on to the last category, that is nucleic acids. They are also polymers. हमेशा याद रखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ऑल पॉलीमर्स. पहला मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने प्रोटीन्स पढ़ा था. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ Amino acid. Very Amino good. acid. second category of macromolecules we said were polysaccharides. They are polymers of Sugars. Sugar. sugar. And third and the last category we are doing nucleic acids. They are also polymers of what? Nucleotide. Yes. In the morning I already told you nucleotide क्या है. शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और साथ में क्या अटैच्ड है? Phosphate. Phosphate group. तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो गए, आपका बन गया व्हाट यू कॉल एज अ न्यूक्लिक एसिड. वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए. ओके, double structure of DNA model, you know, it was proposed by Watson and Crick. We have more than 12 types of DNAs. इसमें आपको नहीं जाना है, आपको बस ये याद रखना है DNA consists of 2 strands arranged anti-parallelly. ठीक है, they are arranged anti-parallelly in a double helix. Anti-parallelly मतलब देखिए, इसका यहाँ पे 5 प्राइम है, ठीक है बेटा, 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे इसके सामने कौन सा दिख रहा है आपको? 3 प्राइम. 3 3 prime. prime. एंड इधर 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 5 prime. prime. 5 प्राइम. प्लस इनके बेसिस की भी पोलैरिटी हमेशा ऑपोजिट रहती है, अभी हम करेंगे. सो दिस इज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड से बना है तो तीनों चीजें होंगी.
द ओनली थिंग इज बेटा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है एंड आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोज। कौन सी शुगर होती है? Ribose. राइबोज। अदरवाइज तो सब सेम है, न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। इसका मतलब क्या क्या है इसके अंदर, एक शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है और थर्ड क्या चीज है? Phosphate group. फॉस्फेट। सो नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में सेम है डीएनए एंड आरएनए में, सिर्फ शुगर चेंज हो जाता है। डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में कौन सा शुगर होता है? Ribose. Ribo. वेरी गुड। अब इसकी बॉन्डिंग देख लेते हैं बेटा। कौन सा किसके साथ बाइंड करता है ये याद करना है बस हमें। एडेनिन विल ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। एटी, ए हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? T. टी। A will always bind with T. Adenine will always bind with thymine. How many hydrogen bonds? 2 Two hydrogen hydrogen bond. bond. And C and G आपस में bind करते हैं, but how many bonds? 3 3 hydrogen hydrogen bond. bond. Let us do it again. A का combination is with whom? A with T. P. How many hydrogen bonds? 2. 2. And C binds with G. how many hydrogen bonds? 3. 3. देखो बेटा यहाँ पे A और T है तो 2 bonds है, G और C है तो 3 है, फिर TA में 2 है। तो याद रखिए AT combination is 2 hydrogen bonds and GC combination is how many hydrogen bonds? 3. 3 hydrogen bonds. So this is the secondary structure. ये bond between the phosphate and the OH group of sugar is called ester bond. ये देखिए आपका phosphate तो था ही, अब शुगर का एक OH ग्रुप भी होता है। शुगर का कौन सा ग्रुप है? OH। देखो हमने बोला 3 चीजों से बनता है, ये ठीक है। तो आपके शुगर का कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, किसके साथ बाइंड करेगा? नीचे क्या है, कौन सा ग्रुप है ये? यस। सो कौन सा बॉन्ड बनेगा? शुगर प्लस फॉस्फेट, OH ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड? एस्टर बॉन्ड। व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड? Ester Ester bond. bond. प्लीज रिमेम्बर, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है, आप इसको ऐसे याद रखो कि 3 चीजें होती हैं हमारे पास, ये वाली 3 चीजें, इसको तो छोड़ दो, नाइट्रोजनस बेस से कोई मतलब नहीं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा शुगर एंड फॉस्फेट में। अब शुगर के भी किस चीज में बनेगा? OH। शुगर का कौन सा पार्ट? OH। किससे बाइंड करेगा? Phosphate group. Yes. And then the bond we get is known as which bond, children? Ester bond. Ester Yes. bond. So the bond between a phosphate and OH group of the sugar is called an ester bond. दोनों साइड पे एक एक होता है बेटा, ठीक है, एस्टर बॉन्ड दोनों तरफ एक एक, एक इधर एक इधर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? Phosphodiester bond. एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है। So let us revise very quickly. Ester bond किसके बीच में बनता है? OH of the sugar and जल्दी बताइए किसके बीच में बन रहा Phosphate था? group. Phosphate group. यस। अब शुगर नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, उसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर दोनों के साथ बनाएगा, ऊपर वाला नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, और अगर शुगर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बॉन्ड है वो? एस्टर बॉन्ड। चलिए, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस का जो बॉन्ड है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। N glycosidic bond. वेरी गुड। एंड शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप का जो बॉन्ड था उस